Good morning, students. Today we are going to discuss the poem on killing a tree written by Giv Patel. So, before starting the poem, let us know about the author Giv Patel. Introduction about Giv Patel. Giv Patel was born in 1940 in Mumbai. His parents were from a small village called Nargol in southern Gujarat. His father was dentist and his mother was the daughter of a doctor. He was educated at Xavier St. Xavier High School and Grant Medical College, Mumbai. He has written 3 books of poetry, 3 plays, and held several exhibitions of his paintings in India and abroad. He held his first show in Mumbai in 1966. The poem On Killing a Tree from that collection is perhaps his most widely known. गिव पटेल 18 अगस्त 1940 में मुंबई में पैदा हुए। उसके पेरेंट्स एक छोटे से गांव से थे जिसे नारगोल कहते हैं, जो गुजरात के साउदर्न में है। उसके फादर डेंटिस्ट थे और माँ एक डॉक्टर की बेटी थी। गिव पटेल की पढ़ाई सेंट ज़ावियर हाई स्कूल में हुई। उसके बाद उनकी पढ़ाई ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुंबई में हुई। उन्होंने पोइट्री की 3 बुक्स लिखी, 3 प्लेस लिखे, मीन्स नाटक लिखे और बहुत सारी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगाई, इंडिया में भी और अब्रॉड में भी। 1966 में उन्होंने पहली बार मुंबई में शो किया। पोइम में ऑन किलिंग ए ट्री उन्हीं में से एक सबसे ज़्यादा दूर दूर तक जाने वाली पोइम है। Introduction of the poem. The poet has tried to send an important fact home to us, that it is not an easy job to destroy a tree. It takes a tree pretty long to become a tree, starting from a seed. Various factors help it in its grow. They are soil, air, water, sunlight, and manure. How can a tree die? Until and unless it is deprived of all these things one by one. A tree can be destroyed only when it loses all the things that are giving it its life. पोइट ने इस पोएम में कोशिश की है कि हम तक कुछ बहुत ही ज़रूरी सच्चाई पहुँचे कि ये आसान नहीं है किसी दरख्त को नुकसान पहुँचाना। एक दरख्त को खूबसूरत और लंबा बनने में बहुत टाइम लगता है। इसकी शुरुआत एक बीज से होती है, यानी सीड से। एक पेड़ को बनने में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे सॉइल मीन्स मिट्टी, एयर मीन्स हवा, वाटर मीन्स पानी, सनलाइट मीन्स सूरज की रोशनी और मैनवर्स मीन्स खाद वगैरह एक पेड़ को बनने में मदद करती है। एक दरख्त, एक ट्री कैसे मरता है? तब तक जब तक ना ये सारी चीज़ें एक एक करके मिलना उसे बनना हो जाए। एक दरख्त तब ख़त्म होता है जब ये सारी चीज़ें जो उसको ज़िंदा रखती हैं वो मिलनी बंद हो जाए। नेक्स्ट इज समरी. Destruction of a tree is a long operation and it requires a lot of effort. It is not a simple job. People generally think that cutting a tree can kill it, but the reality is just otherwise. The reason is very clear. It takes a tree pretty long to become a tree, starting from a seed under the crust of the earth. The seed gets its food from the earth and sprouts as a seedling, then becoming a sapling and finally a tree. Air, water and sunlight help it to grow, while the other earth supports it very firmly. So simply hacking it wouldn't kill it. It wound will get healed and it will grow again as before. In order to kill a tree, its spores will have to be ending by pulling it out of its roots. Then it has to be left lying in the sun to let the water in it dry up so that it may turn brown. Its leaves will also dry up. It will stop breathing and finally wither away, that is, it will die.
किसी दरख्त के ख़त्म होने का काम बहुत लंबा है। इसके लिए बहुत काम करना पड़ता है। ये आसान काम नहीं है। लोग समझते हैं कि ट्री को काट देने से ट्री ख़त्म हो जाता है, मगर असल में सच्चाई इसके उलट है। इसकी वजह भी साफ है। एक बीज मीन्स सीड से इसकी शुरुआत होती है। उसके बाद ये पेड़ तैयार होता है। सीड ज़मीन के अंदर होता है और ज़मीन के अंदर से ही ग़िज़ा हासिल करता है और एक स्प्राउट मीन्स अंकुर ज़मीन से बाहर आता है। उसके बाद वही अंकुर, वही स्प्राउट एक छोटा सा प्लांट बन जाता है और आखिर में एक पेड़, एक ट्री की शक्ल लेता है। हवा, पानी, सूरज की रोशनी इसको बढ़ने में मदद देते हैं, जबकि ज़मीन इसको बहुत ही खूबसूरती से इसको पकड़ कर रखती है। आखिर सिर्फ एक कुल्हाड़ी से काट कर इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसके ज़ख्म अपने आप भर जाते हैं और ये पहले की तरह फिर से ठीक हो जाता है, खड़ा हो जाता है। किसी ट्री को ख़त्म करने के लिए या तो इसकी जड़ें काटनी पड़ती हैं या फिर इससे ज़मीन से उखाड़ना पड़ता है। फिर इसे सूरज की धूप में इसी तरह पड़े रहने दिया जाता है ताकि इसके अंदर का पानी सारा खुश्क हो जाए और इसका रंग भी भूरा सा हो जाए। उसके बाद इसके पत्ते सूख जाते हैं और ये सांस लेना बंद कर देता है और आखिर ये मुरझा जाता है, यानी कि मर जाता है। In next lecture, we will try to discuss the poem line by line. Thank you for watching this video.